Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita, your law faculty at iExamB. I wish you all a very happy Diwali, happy Choti Diwali, and on this Diwali I have come up with a video on the point of IBPS SO Law Officer Examination. पिछले 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि IBPS SO का नोटिफिकेशन आने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट व्हाई यू शुड फिल दिस एग्ज़ाम फॉर्म. सो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही क्रिस्प तरीके से सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. सो दोज हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन गिविंग दिस एग्जामिनेशन डू वॉच दिस वीडियो. एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटा सा टिप भी देने वाली हूँ अपने तरफ से एज अ दिवाली गिफ्ट दैट इज definitely going to help you in your exam preparation. So don't forget to subscribe to our YouTube channel LegalBee and stay updated with all such kind of videos. IBPS SO Law Officer Examination Scale 1. As I told you, we are going to discuss the syllabus that has to be covered in this particular video. इस exam का syllabus definite नहीं है like we have for some examinations, जिसका example मैं दे सकती हूँ आप लोगों को सेबी का. सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है. बट द सिलेबस अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो काफ़ी डेफिनेट होता है. बट अगर हम IBPS SO की बात करें तो द सिलेबस इज कंपैरेटिवली नॉट दैट मच डेफिनेट. बट what we can do is we can still make it definite by applying our logic, by observing the past year trends, previous year question papers, practicing mock tests. All these things will help you understand what is the syllabus. And इस वीडियो में मैं आपको एक क्रिस्प तरीके से सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, ना सिर्फ लॉ का but also of the prelims examination, because prelims examination आपको क्वालिफाई करना होगा तभी आप मेंस में पहुंच पाओगे. एंड अगर मेंस आप क्वालिफाई करते हो देन ऑफ कोर्स यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. सो लेट अस सी व्हाट इज द सिलेबस फॉर द मेंस एग्जाम. फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लेट अस सी फर्स्ट. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको लॉ नहीं पढ़ना है. First thing that you have to keep in mind is that for the prelims examination you don't have law subject in the syllabus. First they are going to check your abilities that are relating to English, reasoning, general awareness, and that too with reference to the banking industry. So ये 3 areas आपके check किए जाएंगे prelims में, and that is going to be held in December. ये मैंने आप लोगों से already discuss किया है पिछले videos में भी. 24th और 31st tentative dates हैं. Notification जल्दी आ जाएगा. So 50-50 questions will be there each from all these 3 areas. आपके पास सबसे बड़ा advantage ये है कि कॉन्स और मैथ्स नहीं है. इंग्लिश का भी वेटेज इतना नहीं है. यू मस्ट हैव सीन मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंग्लिश 25 मार्क्स ही है. सो एक क्वेश्चन सिर्फ हाफ मार्क का ही है. काफ़ी लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है. सो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस वो भी सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री पे ही रेस्ट्रिक्टेड है. सो यू कैन सी द सिलेबस इज नॉट दैट मच वास्ट ऑल्सो दैट यू कैन नॉट कवर इट एंड क्वालिफाई इट इवन इन अ लेस टाइम स्पैन. Sectional cutoff is present, no doubt, and this is just for the purpose of qualifying. तो अगर आप इसे just qualify भी करते हो, so that does not matter. ये marks आपके count नहीं होंगे for final selection. ये सिर्फ आपको qualify करने के लिए तैयारी करनी है. So ये सारे aspects को ध्यान में रख के you have to go ahead with your preparation. Let us see the syllabus quickly. English में it's comprehension. The syllabus is not that much difficult also. It is easy and can be covered in less time span also. Comprehension, para jumbles, para completions, then your general vocabulary, errors you have to spot, sentence corrections will be there, closed text test will be there, then you will have to rearrange the sentences and simple match the columns will be there. If you want to check out, you can check out all the mock tests of this exam at iExamB that are available for free at iExamB. So all these things will give you more idea on the point. रीजनिंग का सिलेबस अगर आप देखोगे, कॉमन सेंस रीजनिंग इज देयर, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग है, कोडिंग का इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन, सिलॉजिज्म विल ऑफ कोर्स विल बी देयर. अगर आपने और भी कोई एग्जाम्स के लिए पहले प्रिपेयर किया है
तो आपको उसका बेसिक आइडिया होता है। जनरली रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वही सिमिलर सिलेबस है, नथिंग वेरी डिफरेंट। सो अगर उसका आइडिया है तो दैट विल हेल्प यू आउट। इनपुट आउटपुट्स, ब्लड रिलेशनशिप्स के कोड्स, puzzles, then seating arrangements, analytical reasoning होगा and data sufficiency. You can download the PPT of this video for your reference also. Syllabus. General awareness is restricted to banking industry. Again and again I'm telling you this is a very good advantage for you because GA का जो syllabus है ये काफ़ी वास्ट होता है and you cannot make it concise, लेकिन at least उन्होंने banking industry तक उसको restrict किया है। So उसमें आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, रोज थोड़ा टाइम जीए को दोगे तो यू कैन कवर इट आउट। एंड ऑफ कोर्स आई एग्जाम बी हैज़ अ बीपीडिया ऑल्सो, you can check out on our website. We have daily bpedia being provided at iExamBee, so वो भी चेक कर लीजिए। रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं उनसे रिलेटेड जीए, इंटरनेशनल लेवल पर बैंकिंग, फाइनेंशियल टर्म्स, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड मनी मार्केट, देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रही है आरबीआई की, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, static general awareness, current general awareness, all these things comprehensively you have to cover, so you can start studying this daily. Then let us see the pattern of examination for mains once, then हम लोग mains का syllabus भी देखेंगे, that is for law. Prelims का आपका इतना ही syllabus था. For mains, first thing you can check out the candidates have to qualify in each of the 3 tests. जैसे मैंने आपसे कहा ये notification का ही cutting है. Minimum cut-off marks will be there and sectional cut-off is there. जो मैंने आपसे अभी कहा it is there mentioned in the notification. This is the notification cutout that I have shared with you. So that will be decided by the by IBPS every time, and it will be category wise. After that, if you are qualifying prelims, you can sit for mains. Mains में सिर्फ 60 questions होंगे. लॉ का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और क्वेश्चन सिर्फ 60 है. इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है एंड द ड्यूरेशन यू कैन चेक आउट, इट इज़ जस्ट 45 मिनट्स. सो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट यू ऑल दैट एनी हाउ मॉक टेस्ट जाके चेक करें एंड प्रैक्टिस करें. आपका अभी क्या लेवल चल रहा है, आपको लीगल, ऐसा तो है नहीं कि आपने लॉ कभी पढ़ा नहीं है, LLB ग्रेजुएट्स हो आप लोग. सो आप पहले मॉक टेस्ट चेकआउट करके ये चेक करो कि आपका सिलेबस कितना आपको नॉलेज है एंड देन प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली. मेंस यू हैव टू गिव नॉट इन द मंथ ऑफ दिसंबर बट इन द मंथ ऑफ जनवरी इफ़ यू क्वालिफाई. बट थोड़ा आपको बेसिक पढ़ाई अभी से करके रखना होगा. प्रीलिम्स भी आपको फोकस करना है फॉर क्वालिफाइंग बट ओनली फॉर क्वालिफाइंग. मेंस यू हैव टू फोकस फॉर स्कोरिंग. सो थोड़ा बेसिक नॉलेज अभी मेंस का लेकर यू हैव टू स्विच टू प्रीलिम्स. जीए तो आप डेली अभी से स्टार्ट कर दो एंड ग्रेजुअली मैनेज योर टाइम इन दैट मैनर. सो क्वेश्चंस 60 होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे. इफ यू प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन यू कैन श्योरली स्कोर वेल. So check the mock tests and judge your preparation, and whatever marks you are obtaining in the mains, that will be considered for your final shortlisting. Mains and interview. Mains का 85% के आसपास वेटेज होगा प्लस 15% इंटरव्यू का वेटेज होगा. So main score is very important for your final merit listing. प्रोफेशनल नॉलेज में अब सिलेबस डेफिनेट नहीं दिया हुआ है बट ऑफ कोर्स यू हैव टू सी दैट जितने भी बैंकिंग रिलेटेड लॉज हैं वो सब आपको पढ़ने होंगे. देर आर चांसेस कि कुछ लोगों के LLB में सिलेबस में बैंकिंग नहीं होगा. सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज एरियाज विच यू हैव नेवर रेड. RBI नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबको होता है. RBI एक्ट का बेसिक आइडिया नॉट वेरी मच इन डिटेल. देन FEMA, what are the policies, substantial sections of FEMA, Bankers Book Evidence Act, Lok Adalat Act, RTI, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम. ये सब पब्लिक इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्स देते हो तो ये एक्ट्स भी पिक्चर में आ जाते हैं. सेल ऑफ गुड्स, बैंकिंग रेगुलेशन थोड़ा सा बड़ा है. अगर आप चेकआउट करोगे iExamBee के नोट्स, इफ़ यू सब्सक्राइब फॉर द कोर्स यू विल गेट क्रिस्प कंटेंट फॉर दैट एज वेल. इट्स अपॉन यू, आपको कौन से सोर्सेज पर रिलाई करना है. बट बैंकिंग रेगुलेशन को थोड़ा सा आपको क्रिस्प तरीके से कवर करना होगा. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए भी सिमिलर एप्लीकेबल है बट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है. देन ऑफ कोर्स द बेसिक एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन द लॉ फील्ड. कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, IPC, CRPC, CPC, procedural laws, evidence,
Then torts, consumer protection, jurisprudence interpretation से बेसिक भी पढ़ लोगे, that is enough. इन एरियाज पर थोड़ा आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा. Transfer of property will be another very important act for you. Partnership, arbitration, conciliation, company law basic, taxation basic, legal terms and maxims, ये तो आप final time पर भी पढ़ सकते हो. एंड इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैगजीन्स, अगर पहले से कभी पढ़े ही नहीं है तो थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया ले सकते हो. बट यहाँ पर आपको प्रायोरिटी स्टडी करनी होगी, because you if at all you are starting from now I will shortly give you a tip which I want to give from my side as a Diwali tip for you all, that is, please keep it concise. I know that many students might not be aware of this examination and काफ़ी लोग notification आने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं. This is actually not recommended. What you have to, for these examinations, you require a very deep knowledge, thorough knowledge. But since you people have studied, if you have studied well in your LLB, ये सारे acts आपके लिए new नहीं है, except some of the acts. So you can apply your strategy, keep it concise, because don't forget that you will be asked only to the point questions. प्रीलिम्स के लिए भी आपको कंसाइज रहना होगा. जो सिलेबस है, जो मॉक टेस्ट है, उसके हिसाब से जितना रिक्वायर्ड है क्वालिफाई होने के लिए, मेक योर स्टडीज दैट मच कंसाइज, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम दैट यू विल गो इनटू डिटेल नाउ. ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स इग्नोर करने की वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. सो कीप योर स्टडीज टू द पॉइंट, keep it concise. For prelims also and for law also, definitely you will be qualifying the examination, and your dream of becoming a banking law officer can definitely be successful. So this is what I can give you, and we at iExamB, the expert faculty, are there to help you anytime. You can come to us with your queries in the comment section of this video. You can also write to us at hello@iexamb.com, एंड हमारे वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर कॉल करके भी अपने क्वेरीज डिस्कस कर सकते हो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लीगल बी, iExamB's YouTube channel for law. Thank you.